انسان کے جسم کے تمام اعضاء خصوصی اہمیت کے حامل ہیں اور کوئی بھی ایک عضو کی خرابی انسان کو معذور بنا سکتی ہے۔ ہمارے انہی اعضاء میں سے اہم ہمارے گردے ہیں۔ گردوں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ انسانی جسم کے گمنام ہیرو ہے جو بہت اہم کام سر انجام دینے کے باوجود کسی بھی خاطر تواضع میں نہیں لائے جاتے۔ عام طور پر لوگ گردوں کی جانب دوسرے اعضاء کی طرح توجہ نہیں دیتے، اس کے باوجود گردے آخری دم تک انسانی جسم میں اپنی ذمہ داریاں نبھاتے رہتے ہیں۔ ہمارے گردوں کی اچھی صحت بہت ضروری ہے کیونکہ یہ خون سے زہریلے اور زائد مواد کو ہمارے جسم سے خارج کرتے ہیں اور ریڈ بلڈ سیلز تیار کرنے میں بھی مددگار ثابت ہوتی ہیں، جس پر ہماری مجموعی صحت کا انحصار ہے۔ ساتھ ہی یہ ہمارے بلڈ پریشر کو بھی قابو میں رکھتے ہیں اور ہماری ہڈیوں کی صحت بھی ان پر ہی منحصر ہے۔ گردے انسانی جسم میں پانی اور نمکیات کے توازن کو بھی برقرار رکھنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اگر ہمارے گردے ہمارے جسم سے بر وقت غیر ضروری اجزاء کو خارج نہ کریں تو جسم کے اندرونی نظام کو بے حد نقصان پہنچ سکتا ہے اور بیماریاں لاحق ہو سکتی ہیں۔ ہماری لاپرواہی کئی بار گردوں کی تکلیف کا باعث بنتی ہے۔ گردوں کے امراض سے متعلق علامات پر خاص توجہ دینے کی ضرورت ہے کیونکہ یہ علامات ان کی مکمل خرابی سے پہلے ہی نمودار ہوتی ہیں۔ ہمارے گردوں کی صحت، اہمیت اور گردوں کے امراض سے متعلق شعور اور آگاہی پیدا کرنے کی غرض سے ہر سال مارچ کی دوسری جمعرات کو گردوں کا عالمی دن منایا جاتا ہے۔ اس دن کو منانے کا مقصد یہی ہے کہ لوگ گردوں کے امراض کے تئیں بیدار ہو جائیں اور اپنے جسم کے اس اہم عضو کو نظر انداز نہ کریں۔ کوئی بھی علامت ظاہر ہونے پر فوراً ماہر ڈاکٹر سے رجوع کریں اور وقت پر علاج کر کے صحت مند رہیں۔ شیر کشمیر انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز کا شعبہ نیفرولوجی جموں و کشمیر میں گردوں کے امراض کی نگہداشت کا واحد مرکز ہے۔ یہ ایسا مرکز ہے جہاں مریضوں کو رینل ریپلیسمنٹ تھراپیز، ٹرانسپلانٹیشن، ہیموڈائلسس اور کنٹینیوس ایمبولیٹری پیریٹونیل ڈائلسس جیسی سہولیات میسر کی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ داخل مریضوں اور او پی ڈی کے مریضوں کو خوراک کی مشاورت بھی فراہم کرتے ہیں۔ 9 مارچ 2023 کو شعبہ نیفرولوجی شیر کشمیر انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز سکمز نے گردوں کی صحت سے متعلق بیداری پیدا کرنے کے لیے ورلڈ کڈنی ڈے منایا۔ اس سال کا تھیم تھا کڈنی ہیلتھ فار آل، preparing for the unexpected, supporting the vulnerable۔ ناظرین، چونکہ 9 مارچ کو ورلڈ کڈنی ڈے منایا جاتا ہے، گردوں کا عالمی دن منایا جا رہا ہے 9 مارچ کو، اور آج اس موقع پہ ہم اس وقت موجود ہیں شیر کشمیر انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنس سورا سری نگر میں، چونکہ آج ڈپارٹمنٹ آف نیفرولوجی کی طرف سے ایک اویئرنیس پروگرام آرگنائز ہو رہا ہے شیر کشمیر انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنس سورا میں، جس میں کئی سارے ایکسپرٹس ابھی آ چکے ہیں شرکت کرنے تاکہ عام عوام کو باخبر کرے جو گردوں کے تکالیف ہے، صحیح وقت پہ پہچانے اور صحیح وقت پہ علاج و معالجات کے لیے سامنے آئے۔ Every year the campaign highlights a particular theme, and the theme for this year is Kidney Health for All, preparing for the unexpected, supporting the vulnerable. This year's theme is focused on raising awareness about the impact of disasters, natural or man-made, international or local, and their impact on people living with kidney disease. تقریب کے آرگنائزنگ چیئرمین ایچ او ڈی نیفرولوجی ڈاکٹر محمد اشرف بٹ نے اپنے استقبالیہ خطاب میں شعبے کے کام کاج پر روشنی ڈالی اور گردوں کے عالمی دن کی اہمیت پر زور دیا تاکہ دنیا بھر میں لاکھوں افراد کو گردوں کی بیماری سے متعلق آگاہی فراہم کی جا سکے۔ It is my honor to welcome you all for participating in this year's event of World Kidney Day, which has been a regular phenomenon for the last 8 years from our department.
Our nephrology department is providing all kidney-related services, including nephro interventions and all the possible modalities of treatment for kidney ailments. The Department of Nephrology at SIKIMS continue to deliver services 24/7 despite all the odds all these years. At the academic level, we have a DM nephrology course undergoing for last more than 2 years. MSc hemodialysis is going on for last many years besides BSc hemodialysis. Hemodialysis units of health department at almost all the districts of Kashmir and Ladakh are run by the health personnel, most of whom have been trained at hemodialysis unit of Sikkim. I once again request the administration for full support to upgrade our bed strength in the ward and dialysis unit, including the upgradation of the equipment. World Kidney Day, as has already been highlighted, is a joint initiative of International Society of Nephrology and International Federation of Kidney Foundations, launched for more than last 17 years. This day is observed annually on second Thursday of March as a global campaign aimed at raising the awareness and importance of our kidneys to our overall health and reducing the frequency and impact of kidney diseases and its associated problems worldwide. इस मौके पर मेडिकल सुपरिटेंडेंट स्किम्स डॉक्टर फारूक अहमद जान ने भी खिताब किया. Today's theme, World Kidney Day, preparing for the unexpected, supporting the vulnerable, is a well thought out idea. We have been previously speaking on making awareness among public regarding kidney diseases. But yes, we have to plug the loopholes we have in management. You must be remembering the floods of 2014, when people could not travel from one place to another. And I have witnessed to what happened when the flood waters receded. We got critically sick patients from various districts at Sher Kashmir Institute of Medical Sciences, and most of the patients were those who were having chronic diseases and had not been attended to. प्रोफेसर रब्बानी, प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज स्किम्स ने इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए नेफ्रोलॉजी के शोबे को इनकी खिदमत के लिए सराहा. It is indeed a matter of sheer joy and pleasure to be here amongst all of you celebrating the World Kidney Day 2023, which has a very catchy and an inclusive theme of kidney health for all. The Department of Nephrology has been celebrating the World Kidney Day, I believe now, for more than a decade. And this year's theme, the sub-theme was very, very catchy, supporting the vulnerable. I have myself been a first-hand witness to the kind of outreach programs and supportive programs that have been designed by the faculty members and other doctors and paramedics associated with departments of nephrology, with departments of urology, and of course other supportive departments. डीन मेडिकल फैकल्टी प्रोफेसर बशीर अहमद लावे ने अपने खिताब में अद्वियात के गैर मुनज़्ज़म इस्तेमाल को रोकने पर जोर दिया. इन्होंने गुर्दों की बीमारी के बारे में लोगों को बेदारी पैदा करने के लिए इन आगाही प्रोग्रामों के इनेकाद पर नेफ्रोलॉजी के शोबे को मुबारकबाद दी. See, Kashmir is full of disasters. Don't think that disasters are over. So we had so many disasters. We had floods, we had COVID. So you can have disasters in the form of a shortage of staff, in the form of shortage of manpower, in the form of shortage of faculty, in the form of shortage of equipment. So disaster doesn't mean natural disasters only. So you have to be ready for these disasters. And then you have to take an action accordingly. We have expanded the department. We have a DM course. Many endocrinologists are in private practice. They are in other hospitals. So people with diabetes get treated maybe for some and they live for more time.
So if they live for more time, the next, their halt is ultimately in the nephrology department. डायरेक्टर स्किम्स प्रोफेसर परवेज अहमद कोल ने अपने खिताब में शोबे नेफ्रोलॉजी को जम्मू कश्मीर और इससे बाहर भी किडनी हेल्थ केयर खिदमात में सबसे आगे रहने पर मुबारकबाद पेश की। It's a pleasure to be here on the eve of the 18th World Kidney Day, which is celebrated today with a significant theme, that World Kidney Health for All, and you have to preparing for the unexpected and protecting or supporting the vulnerable. So it's nice to have these programs organized in order to make sensitization amongst the participants as to what can they do in order to reduce the burden of kidney disease that is whopping, and Dr. Ashraf said that 10% of the world population is going to have kidney disease. That is terrible, and I have known Department of Nephrology as one of the most efficient departments of this institute. We had probably the best of the nursing staff in the department. A nursing note would be more informative to you than any other information that you would seek from the attendance of the patient. I would actually want to give my wholehearted appreciation to the nursing team, who are big contributors to the patient care that is actually practiced in the departments. इन्होंने कहा कि महकमा नेफ्रोलॉजी की बेहतरीन खिदमात फराहम कर रहा है। इन्होंने गुर्दों की सेहत के लिए इस तरह के प्रोग्रामों के इनकाद पर महकमे की तारीफ भी की। इन्होंने मजीद कहा कि शोबा इल्म और तहकीक में भी नुमाया किरदार अदा कर रहा है। Talking of the contributions of the department, it's heartening to know that they have gone forayed into postgraduate programs in nephrology. They are doing the postdoctoral DM course, and it's an immense contribution to the development of competent nephrologists for the state, and of course for every other area in and around the country, and maybe outside the country as well. प्रोग्राम के दौरान माहिरीन की जानिब से अहम मौज़ूआत पर लेक्चर्स का एक सिलसिला भी पेश किया गया, जिनमें ओवरव्यू ऑफ द वर्ल्ड किडनी डे, शुगर एंड किडनी, सेव योर किडनी पर लेक्चर शामिल थे। इसके अलावा एक पैनल डिस्कशन का इनकाद भी अमल में लाया गया, जिसकी सदारत सीनियर फैकल्टी मेंबरान ने की। प्रोग्राम के दौरान मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को एजाज़ात से भी नवाजा गया। प्रोग्राम का इख्तिताम शुक्रिया की कलमात के साथ किया गया, जो कि PR ऑफिस स्किम्स के जरिए जारी किया गया। I would also like to extend thanks to Dean Medical Faculty Skills, Professor Bashir Ahmed Navid, for making his presence and gracious presence among us. Further, we would like to thank Principal Skills Medical College, Professor Irfan Rabbani, and respected medical President Skills, Professor Farooq John, for making this event a success. We would also like to thank our chairpersons, Professor J.H. Malik, who is the Director Wellcare Hospital and ex-HOD Skims Nephrology Department, Dr. Farshid Ahmed Bandi, ex-Professor Nephrology Skims, Professor Faiz Ahmed Sofi, Professor Zafar Amin Shah, Professor Sanaullah Shah, Professor and Dr. Khalid Perez. We thank you all for your active participation. We would also extend our heartiest gratitude to our HOD and Professor and Head Urology and Kidney Transplant, Dr. Professor Mohammad Slimani, and of course Dr. Ejaz Arshid and Dr. Adil Bey for their valuable insights during the panel discussion. Last but not the least, we would like to extend our thanks to media persons from Doordarshan Kendra Srinagar, News 18 and others.
Besides, this program would not have been possible without the logistic support from the Department of Estate Schemes, Photography, Security, Electric Engineering, of course, for their uninterrupted electric supply, Mechanical Engineering and Transport. Once again, thank you all for your support and participation. We hope you had a wonderful time and we would like to have you in future. Thank you very much. नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जनाब डॉक्टर सलीम साहब, जो एक्स HOD रहे हैं डिपार्टमेंट ऑफ नेफ्रोलॉजी स्कीम सौरा श्रीनगर में। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, आज चूंकि 30-32 सालों की सर्विस आपने सौरा श्रीनगर में दी है, आपसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह के गुर्दों की तकालीफ आप देखते हैं, और खासकर अगर हम बात करें कश्मीर की, तो किस तरह के किडनी डिजीजेस आप देखते हैं प्रिवलेंट है, और कितना इम्पोर्टेंट है कि वर्ल्ड किडनी डे पे हम लोगों तक अवेयरनेस पहुंचाए, लोगों को बाखबर करे कि गुर्दों के तकलीफ को पहचाना और सही वक्त पे सामने आना कितना जरूरी है। अगर इस बकोचन हूं दायदन हूं मूल वुचो, सो मूल शु शुगरस मज तो ब्लड प्रेशरस मज तकरीबन हत मज 7 बकोच फेल गसान अमे शुगर सत या ब्लड प्रेशर सत। तत द्राव माने कि इम दद कत्या मज दुशवे दद वारिया ज्यादा। मसलन हको इत वनित इत बेन जायन यम ब्लड प्रेशर दद ये तम नश रसा ज्यादा पहनस। तमो मतलब गो ये मूल कुल बड़ बकोचन हंद दद तसा ज्यादा पहनस। इथे पे शुगर तह ज्यादा वान। अगर वो सड़क पे रटो 100 नफर अत नेर 10 शुगर यमन पत वहन यमन पत 10 यमन शुगर शुगर दौद तह ज्यादा गो ब्या मूल तह बड़ मजबूत। तो यह नंबर 1 वजह दुनिया मज कशीर अमेरिका अफगानिस्तान शुगर नंबर 1 वजह बकोट फेल गसनुक। अगर यम 2 दद ये ज्यादा बकोचन हंद दद तह ज्यादा तो गो यह बेन अलग चीज़ यम अमि बकोचन हंद दद ज्यादा सह पाने दवा खेवान खुसूसन दग फल मशहूर। अगर बह तुह इत वन मिसाल, ऑस्ट्रेलिया बड़ मुल्क यम पानस वनान पर्वन लिखवन तरक्की कर्म, तत नंबर 1 वजह बकोट फेल गसनुक दगी दवा फल खेन। तम खेवान। पत्न ब्या मसला नून चोर खेवान। नून क्या कर, नून ब्लड प्रेशर वजह, नून दिल कन दादन हूं तह वजह अक हिसाब बनान। तो खेवान माज चोर, माज फुल 1 खेमो जेनो, 2 खेमो हारो। अगर दोह खेमो 1 खेमो तथ कह परवाह। अगर बड़ माज खेमो 1 फुल तथ कह परवाह। ज्यादा खोन कह। यम बड़ बड़ वजह यम ब्या चीज़ सन बुजुर्ग उम्मन वना बस कमजोर, गसान अमिस विटामिन दिवान खुसन, तथ वन विटामिन D। अक इंजेक्शन समिस ताकत हिू बासान तह डॉक्टरी मानान। अम अड़ज जरा दरान इन बासान हेमत हिश। इम क्या करान, इम दपान वन गोसुन 2यम तह आसन, 3यम तह, 4यम तह, 21 उम्र मज कर आसान। इम करान बाजे 10 तह। तम क्या गसान बकोच हेकन तम फेल गसित। तम जिसम मज कैल्शियम गसान जमा, बकोच फेल गसान। अम मूजूब हेको वनित कि बकोचन हंद दद ये मज बनस्बत बेन जान हंद ज्यादा। यह वनव लुकन मज बाखबरी कहें, अवेयरनेस कहें, अब मख लुक लेट बिल्कुल वाकफियत लूकन कहें। अत मज बेमार सुंद खता तह डॉक्टर सुंद खता। बह गस मानुन अत मज डॉक्टर सुंद खता। ये बह दिम तुह मिसाल अगर कंस शुगर नन्याव अमिस अमे दो वन 2 चीज़ कर। यम दो शुगर नन्याव अमिस वन 4 घंटे हंदिस पेशाबस करना टेस्ट। यम दो शुगर नन्याव तमे दो बेमिस वन अछन करना टेस्ट। आपसे ये जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हर साल हम देखते हैं कोई ना कोई थीम रहता है, तो आज की क्या कुछ थीम रही और क्या कुछ बोलना चाहेंगे आज के मौके पे? शुक्रिया आप हमको बुलाने के लिए। मैं डॉक्टर मुजफ्फर हूँ, प्रोफेसर ऑफ नेफ्रोलॉजी एट शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। वर्ल्ड किडनी डे हम हर साल मनाते हैं, और इसकी आपको पता है कि मेन रीज़न इसका रहता है कि किडनीज कैसे हम सेफ रखें, हेल्दी रखें, और अगर किडनी की बीमारी है उनसे कैसे हम निपट लें। ये हमारा मेन थीम होता है। लेकिन इस साल का थीम ये है कि अब जैसा आपको पता है कि कोविड-19 ने बिल्कुल 2 साल के लिए हमको बिल्कुल जीने नहीं दिया था। तो उस कोविड में इतनी ज़्यादा परेशानियां होगी कि लोग डायलिसिस कैसे करें। जब वो डायलिसिस करने के लिए जाते थे, खतरा रहता था कि उनको कोविड हो जाएगा, और अगर उनको कोविड हो तो उनकी डायलिसिस कहीं नहीं होती थी एक्सेप्ट शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में। तो ऐसी आफतों को निपटने के लिए हमको कैसे किडनी बचानी है, ये इस साल वर्ल्ड किडनी डे का मेन थीम था
कि हम अगर आफत आए, डॉक्टर्स नहीं होते हैं, मैनेजमेंट नहीं होती है, कभी मेडिसिन नहीं होती है, कभी डायलिसिस की सुविधा नहीं होती है, ट्रांसप्लांट की सर्जरीज बंद हो गई थी, तो इस सूरत से हम कैसे बचें, यही मेन थीम है। और दूसरा थीम, जैसे आपको पता है कि रिसेंटली एक अर्थक्वेक भी आ गया, हमने भी अर्थक्वेक चेक की है बहुत साल पहले, तो अर्थक्वेक में भी हमको देखना है कि किडनीज जो, अगर अर्थक्वेक का इफेक्ट एक दिन नहीं रहता है, अर्थक्वेक तो एक झटका आता है, लेकिन उसका इफेक्ट, या फ्लड्स जैसे आए, फ्लड्स आए, अर्थक्वेक आ गई, तो ये सारी चीज़ें एक हमारी मेडिकल जो सारा ये इंफ्रास्ट्रक्चर है, इनको टोटली डिसअरे करते हैं। तो इस साल का थीम ये भी था कि हम इन आफतों से, चाहे वो नेचुरल आफतें हो या मैन मेड आफतें हो, एक वॉर चल रहा है किसी कंट्री में, वहाँ के किडनी पेशेंट्स को हम कैसे डायलिसिस करें, मेडिसिन दे दें, ये तो इस साल की थीम यही है कि जो आफतें आती हैं इंसानों पर, इस दुनिया पे, चाहे वो नेचुरल आफतें हो या मैन मेड आफतें हो, उनसे हम कैसे बचाएं अपनी किडनी को, और हर एक पेशेंट जिसको किडनी की बीमारी है वो कैसे इन आफतों से बच के, और हम उनको कैसे प्रॉपरली ट्रीट करें, ये हमारा मकसद है इस वर्ल्ड किडनी डे। जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच। हम देख रहे हैं काफी इंसिडेंट्स बढ़ गए हैं। जब हम क्रॉनिक किडनी डिजीज की बात करते हैं तो कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं एक पेशेंट को अगर उसको सही वक्त पे डायग्नोसिस नहीं किया गया? पीपल इग्नोरेंट है अपनी लाइफ को लेके, बहुत चीज़ों को नॉर्मल मानते हैं, खुद खरन दिस इज़ नॉर्मल, इसको लोग सीरियसली नहीं लेते। जो भी रिस्क फैक्टर्स है किडनी डिजीज़ होने के, जैसे डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, उसको लोग सीरियसली नहीं लेते। तो अब जो आपका सवाल है, कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, कि क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं अगर पेशेंट टाइमली हमारे पास नहीं आया। पेशेंट हमारे पास आता है किडनी डिस्फंक्शन लेके, किडनी की खराबी लेके, तो हमारा सबसे पहला सवाल ये होता है जो हम अपने आप से पूछते हैं कि क्या ये रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है। अगर रिवर्सिबल हो तो वी आर द हैप्पीएस्ट पीपल ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, हम बहुत खुश होते हैं कि चलो रिवर्सिबल है, इट कैन बी सॉल्वेज, ये किडनी को हम इलाज करके बचा सकते हैं। मगर अगर इरिवर्सिबल हो तो देन हमारा सेकंड टारगेट रहता है कि ओके जी, इसको हम रिवर्स नहीं कर सकते, मगर हम ऐसा करेंगे कि इसकी रेट ऑफ प्रोग्रेशन कम हो जाए। मतलब जिस स्पीड पे ये बढ़ेगा क्रिएटिनिन, किडनी की खराबी जिस स्पीड पे बढ़ेगी, उस स्पीड को हम कम करें। हम इसको ना रिवर्स कर सकते हैं ना रोक सकते हैं अगर ये इरिवर्सिबल हो। ना हम इसको रोक सकते हैं एक जगह पे, ना हम इसको रिवर्स कर सकते हैं, ये दिन ब दिन बढ़ेगा। तो हमारा काम ये रहता है एज नेफ्रोलॉजिस्ट कि हम इसकी स्पीड, जो इसकी रेट ऑफ राइज है, उसको हम कंट्रोल करें, और हम टाइमली पेशेंट को तैयार करें फॉर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मोडेलिटी। जैसे आप मानिए किडनी खराबी है, मगर उतनी खराबी नहीं है कि पेशेंट को डायलिसिस की या ट्रांसप्लांट की ज़रूरत हो, तो हम उनको दवाई दे के चलाते हैं। उस टाइम तक, जब तक हमको लगता है कि नहीं अब इनकी किडनी इतनी ख़राब हो गई है कि अब इनकी लाइफ पॉसिबल नहीं है इस किडनी को लेके, तो जब ये स्टेज पहुंचती है, ये स्टेज पहुंचने से 6 महीने पहले ही, जब हम एंटिसिपेट करते हैं कि 6 महीने के अंदर अंदर इस पेशेंट की किडनी वहां पहुंचेगी कि इसको फिर डायलिसिस वगैरह की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम उनको तैयार करते हैं डायलिसिस के लिए। हम उनको बताते हैं कि आप फिस्टुला बना के रखिए, ताकि जब भी आपको डायलिसिस की ज़रूरत पड़े तो आपको कोई दिक्कत नहीं हो, आपको फिस्टुला बना के वहाँ से आप डायलिसिस शुरू करें। जैसे कि आपने देखा, ये जो आज का इवेंट था, ये एक हॉस्पिटल में हुआ। यहाँ पे बहुत सारे पेशेंट्स के जो अटेंडेंट थे वो यहाँ पे आए हुए थे, उनको अवेयर हुआ, जो उनके पेशेंट्स थे जो कि किडनी प्रॉब्लम से डील कर रहे थे, अभी तक उनको कितनी अवेयरनेस मिली, कितना उनको पता चला कि कैसे हम उस चीज़ को ट्रीट करें, कैसे उसको प्रिवेंट करें, और कैसे मतलब उसको होने से मतलब बचे हम। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर मोहम्मद अशरफ साहब, जो कि एचओडी हैं डिपार्टमेंट ऑफ नेफ्रोलॉजी, स्किमस सोरा। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, आपसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि गुर्दों के तकलीफ अगर किसी पेशेंट को है तो कैसे पहचानेगा कोई कि मुझे मत कोई किडनी प्रॉब्लम है, क्या कुछ अलामत रहते हैं ताकि आम आवाम को पता चले कि क्या कुछ साइंस एंड सिम्टम्स रहते हैं? देखिए, साइंस जो भी सिम्टम्स होते हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम्स पेशेंट नेगलेक्ट करते हैं। मैं बताऊं ऐसे कि पहले ये होता है कि किडनी यूरिन की फ्रीक्वेंसी चेंज होती है, मतलब आदमी पेशाब करता है, पहले मान लीजिए 6 बार करता था, 7 बार, अभी उसकी जो फ्रीक्वेंसी है या तो वो बिल्कुल कम, या तो वो कम हुई है या बढ़ गई है। उसको ये देखना चाहिए, अगर मैं वही काम कर रहा हूँ, उसी धूप में हूँ, वही एक्सर्शन कर रहा हूँ और वही पानी उतना ही पीता हूँ, तो यूरिन आउटपुट मेरा ये फ्रीक्वेंसी क्यों कम हुई। या उसको कभी ऐसे लगता है कि उसकी यूरिन का कलर चेंज, उसमें लग रहा है कि ब्लड आ रहा है, तो इसका मतलब है किडनीज पे कोई असर हुआ, उसको जांच करनी चाहिए, कहीं किडनी की तकलीफ तो नहीं है। कम फैक्टर्स छ रोजान यम जन पन्निस कंट्रोलस में यमन पे जन कंट्रोल पवित, यम जन डिजीज छ किडनी डिजीज तिमन पे कंट्रोल हेको पवित।
वुचो किडनी डिजीज गोडनेथ क्रॉनिक किडनी डिजीज अस वुचन यह कम सान सारी खोत कॉमन काज अत डायबिटीज बे अगर ब्लड प्रेशर आए अनकंट्रोल गो अस गोडनेथ करो यमनी दोन पे फोकस 70% यमे कर पे फोकस कर कि कत यमो नश कत हेको बचित गो अस पजन लाइफ स्टाइल तित चेंज कर कि अस गि नम तकलीफ तथ मज यह सह बिहित रोजन कह इत ब्रोट सन जद अजदाद तम मेहनत मशक्कत कर डाइट खान असल तम रूद ठीक आजकल ज्यादा बढ़ोमुत तिज ज्यादा कर गाड़ियों मज इस्तेमाल पकान कम चाहे लकुट आ बोड़ आ गो एक्सरसाइज कर मेहनत कर 70% लुक तमन ग जन किडनी फेलियर तथ मज मेन रीजन नंबर 1 डायबिटीज दोम ब्लड प्रेशर गो डायबिटिक पेशेंटस ज्यादा चांस किडनी फेलियर गसनस लिहाजा जन कह डायबिटिक ब्लड प्रेशर पेशेंट या ज्यादा मोट सिगरेट चवन दवा वारियास कालस खमित या अम सद फैमिली मज किडनी फेलियर यमन ज्यादा जरूरी यम करनायन जांच किडनी मा कुन तरीके गम इफेक्ट सिंपल यूरिन टेस्ट तो ब्लड टेस्ट। बिल्कुल, बहरहाल डॉक्टर साहब सटा सटा शुक्रिया तुम नाज़रीन। जैसा कि आपने देखा कई सारे एक्सपर्ट्स ने अपनी राय इजहार करने की कोशिश की और जैसा कि हम देख रहे हैं क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के जो इंसिडेंट्स हैं काफ़ी ज़्यादा हैं और ख़ासकर अगर हम बात करें कश्मीर वैली की, हमें बिल्कुल उम्मीद है कि इस प्रोग्राम के चलते आप बाखबर हुए होंगे कि कैसे हम गुर्दों की तकलीफ को पहचानें और कितना ज़रूरी है कि सही वक्त पे हम सामने आए इलाज और मुआलजात के लिए। फिलहाल के लिए इतना ही, इसी के साथ हमें इजाज़त दें और हमें अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। अल्लाह निगहबान।